Hello students, you have already studied reflection of light, refraction of light in your 10th standard. Okay. So, we will revise those concepts. Okay. This is not, we have to study this in just with the fun. Okay. So, it is not academic. So, do not be worried. Okay. So, what is light? Light is electromagnetic waves, brar, and wave, it is the form of energy. Clear? Here we will discuss the ray nature of light, and when we discuss ray nature of light, it is optics, ray optics. Okay. So, ray optics mein we have to study reflection, refraction mainly. Let us discuss reflection. For reflection, we need reflecting surface. Okay. So, here normally we consider mirror. So, first of all, laws of reflection. The first law we all know, angle of reflection, angle of incidence and angle of reflection are equal. Second point, angle of incidence and angle of reflection are equal, then second law, incident ray reflected ray and normal drawn to surface are in सेम प्लेन, है ना. तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है. सपोज ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके. ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल टू द सरफेस, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे. ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो जितना एंगल दोनों ऑपोजिट साइड में होंगे नॉर्मल के, बराबर, तो I इज इक्वल टू आर. Angle of incidence is equal to angle of reflection. And second thing you can notice is this incident ray, reflected ray and normal, they are in the plane of the board. So, incident ray, reflected ray and normal drawn to the surface are in same plane. ठीक है. Now, in our we have to discuss reflection for plane mirror as well as reflection for concave and convex यानी spherical mirror. तो पहले हम spherical mirror को डिस्कस करते हैं. तो spherical mirror में आपको पता है we have to study concave mirror and convex mirror. Now, you can consider plane mirror as a special case of concave mirror or convex mirror. Clear? तो पहले concave mirror लेते हैं. concave mirror में क्या होगा,
जो कॉन्केव साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, बराबर। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मुझे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है तो जो सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर है, इट इज द पार्ट ऑफ सर्टेन स्फीयर, ओके। तो सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस is your center of curvature, okay. Concave mirror, the spherical mirror is the part of, is a piece of certain spherical surface. So center of that spherical surface is your center of curvature, okay. Pole, so it is the center of your curved surface. Line passing through, listen, the imaginary line passing through pole and center of curvature is called axis. तो ये आपकी axis है. Distance between pole and center of curvature is your radius of curvature. Distance between center and pole, बराबर, उसे क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि आपने, अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करूं जिसका सेंटर सी हो और पोल उसकी सरफेस पर हो, ठीक है, तो ये उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस होगी, बराबर। इसीलिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। इसी तरह से लिसन, ये जो क्यू डैश कंसिडर करो, बराबर। तो अगर मैं इस मिरर को 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो उसकी जो एज होगी वो सर्कुलर होगी। उस सर्कुलर एज का जो डायमीटर है वो क्यू डैश है, इट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर, बराबर। और नॉर्मली जो हमें पढ़ना है कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, उसमें एपर्चर जो है it is very small compared to horizontal distances, यानी focal length, radius of curvature, object distance, image distance। इसीलिए कोई भी रे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा वो बहुत कम होगा, बराबर। कोई भी रे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। अब हमें फोकल लेंथ पढ़नी है, बराबर। तो फोकल लेंथ इंटरेस्टिंग है, if I consider concave mirror, to consider rays which are parallel to each other and parallel to axis. So in case of concave mirror, the point where all these rays meet after reflection, the point where they meet after reflection is your principal focus, बराबर। and if it is convex mirror, बराबर, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है एक्सिस। तो इसमें after reflection, the point where it appears that rays meet,
is called principal focus. So you should notice one thing, in case of concave mirror rays actually meet, whereas in case of convex mirror ray do not meet, it appears that they meet. Okay. So in case of concave mirror, this is the principal focus where actually all parallel reflected rays meet, and in case of convex mirror, the point where it looks that all reflected rays meet is principal focus. Now what is focal length? It is the distance between pole and principal focus. It is the distance between the pole and principal focus. बराबर, तो ये फोकल लेंथ है. क्लियर? नाउ लिसन, फोकल प्लेन. तो इफ आई कंसीडर प्लेन like this, if I consider plane which is perpendicular to axis and passing through the principal focus, it is your focal plane. समझ में आया? Plane which is perpendicular to axis, plane which is perpendicular to axis and passing through principal focus is your focal plane. Okay, what is the importance of focal plane? If the object, if we consider the object which is at infinite distance, in that case the image is formed on focal plane. Clear? If we consider the object at infinite distance, then you will find image on focal plane. बराबर, नॉर्मली जब आप लैब में जाओगे बराबर, अपने आई थिंक अगर एक्सपेरिमेंट किया है, फोकल कोई भी मिरर है और स्फेरिकल मिरर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका फोकल लेंथ फाइंड करना है. तो आप उसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड करोगे? तो मिरर से आपको जो वेरी लार्ज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फाइंड करना है, और जो आपको इमेज डिस्टेंस मिले दैट इज योर फोकल लेंथ. ठीक है. फिर हमें ये डिस्कस करना है कि इमेज फॉर्म कैसे होती है. बराबर, इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड मिनिमम 2 रेज. ओके, ऑब्जेक्ट में से जो मिनिमम 2 रेज को आपको कंसीडर करना है वो रिफ्लेक्ट होकर जहां पर मीट करे बराबर वहां पर आपको इमेज मिलेगी, और आप किसी पॉइंट की इमेज फाइंड कर सकते हो बराबर. उसी से हम फिर एक्सटेंडेड बॉडी का इमेज डिस्क्राइब कर सकते हैं बराबर. पर हमारे पास जो रे डायग्राम है, तो रे डायग्राम से हम किसी पॉइंट की इमेज फाइंड कर सकते हैं. समझो, ये मैंने कोई स्फेरिकल सरफेस कंसीडर की और ये कॉन्केव मिरर है बराबर. ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यहां पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ए बी. अब मैं ए बी ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट को कंसीडर करता हूं बराबर, और मुझे उसकी इमेज फॉर्म करनी है. तो कंसीडर रे बराबर, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है. तो एक, if the ray is parallel to principal axis, after reflection it passes through principal focus. तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो बराबर. then if the ray is incident perpendicular to the surface, in that case your angle of incidence is 0, and because your angle of incidence is 0, the ray will reflect in the same path. Clear? And third, if the ray passes through the principal focus, then after reflection it will be parallel to axis. तो इन चीज़ों का क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन के बाद रे की डायरेक्शन पता है, ऐसे 2 रे लेने हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वहाँ पर आपको इमेज मिलेगी बराबर. तो मैंने ये एक पैरेलल रे लिया बराबर, ये रिफ्लेक्ट होकर एफ में से पास हो रहा है, तो डेफिनेटली इमेज यहाँ पर कहीं है बराबर. एक रे सी में से पास हो रहा है, अब सी सेंटर है, तो ये रेडियली बराबर
प्रोपोगेट कर रहा है, यानी रेडियली जो प्रोपोगेट करेगा वो सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा, और जो सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, बराबर, बिकॉज द रे इज नॉर्मल, बराबर, क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो रे विल रिफ्लेक्ट बराबर इन द सेम पाथ। ठीक है, थर्ड चीज, वी नीड ओनली 3, द रे विच पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, बराबर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा इस तरह से, तो ये ए डैश है जहां पर आपको ए की इमेज मिली, बराबर। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये आपका बी डैश, क्लियर। तो अगर मुझे इमेज फॉर्म करनी है तो मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, बराबर। तो इसके लिए आप जिन रिफ्लेक्शन के बाद जिनके पाथ के बारे में हमें पता है वैसा कोई भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो, वैसे 2 कंसेप्ट आपको यूज करने हैं, उससे रिफ्लेक्टेड रेज आपको फाइंड करने, और ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट करे वहां पर आपको फाइनल इमेज मिलेगी, क्लियर, वहां पर आपको फाइनल इमेज मिलेगी। तो हमें यहां पर फाइनल इमेज मिली, ठीक है। अगर ये कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स मिरर होता, एक और कंसेप्ट हमें समझना है, व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज इमेजिनरी इमेज, यानी वर्चुअल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ रेज रियली मीट एंड फॉर्म इमेज तो वो रियल इमेज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ रेज डू नॉट मीट but it appears that they meet, then you will find virtual image. Here you can see rays really meet in case of concave mirror, so the image we get is real image. But here in case of convex, AB is your object, as we have discussed, we will find image of point A, center of curvature, principal focus F, clear. Now consider the ray which is parallel to principal axis. Now we know that after reflection it passes through F, okay. Consider the ray, now listen, consider this ray, okay, it incidents normally, तो आपको पता है ये इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब ये यहां पर मीट करते हैं तो आपको इमेज यहां पर मिलेगी, ये एक्चुअली मीट नहीं करते, इट अपीयर्स दैट दे मीट बट दे डू नॉट मीट रियली, तो ये आपकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर हियर द इमेज वी गेट इज योर real image, whereas in case of convex mirror the image formed is virtual image. Why it is virtual? Because here rays do not meet, it appears that they meet, ठीक है। एक और चीज नोट करो, जो रियल इमेज है वो मिरर की उसी साइड में होगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, बराबर। वर्चुअल इमेज में ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर और इमेज दोनों आइदर साइड है। अब ये तो ऑपेक है मिरर, तो रे डेफिनेटली बराबर मिरर की पीछे जा ही नहीं सकते, तो ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो डेफिनेटली वर्चुअल हुई, बराबर। वहां रे जाते नहीं, बराबर वो मीट करेंगे ही नहीं, तो रियल इमेज फॉर्म होगी ही नहीं, क्लियर। फिर मैग्निफिकेशन, एक शॉर्ट आइडिया दे दूं मैं,
मैग्निफिकेशन नॉर्मली हमारा कंसिडरेशन ये है कि अगर इमेज रियल इमेज फॉर्म होती है, अगर इमेज रियल फॉर्म होती है तो हम मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और अगर आपका इमेज जो है वो वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आप टाइप ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया? आपको दे दिया गया है कि मैग्निफिकेशन +2 है, इसका क्या मतलब? मैग्निफिकेशन +2 इज बराबर, तो मैग्निफिकेशन प्लस है यानी आपकी इमेज वर्चुअल है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है 2, तो मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? लिसन, मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड 2 है यानी द साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कितने टाइम से ये भी पता चले, और साथ साथ में इमेज रियल है या वर्चुअल है ये भी पता चले। तो कॉन्केव मिरर जो है वो नॉर्मली रियल इमेज ही फॉर्म करता है। देयर इज ओनली वन केस इन विच कॉन्केव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, एंड दैट इज when object is placed between F and P, principal focus and pole के बीच जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, in that case, in case of concave mirror you will find virtual image, otherwise you will find real image. But in case of convex mirror, in case of convex mirror, image is always virtual, image is always virtual and it is always smaller than the object. Okay, it is always smaller than the object. ठीक है, अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया इससे एक मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाता हूँ, बराबर, उसे सोचना तो आपको समझ में आ जाएगा बराबर कि आप कितना सही से लर्न कर पाए। बराबर, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज वर्चुअल एंड इट इज ग्रेटर देन द brother, the size of the image is greater than the size of object. Now can you tell me what is the type of mirror? So definitely it is concave mirror. Convex mirror में जो image form होती है it is always smaller than the object. बराबर, virtual image जब आपको concave mirror के लिए मिल रही है तो in that case image is always larger than object. Definitely virtual, but virtual image is larger than the object in case of concave mirror. तो ये हमने जो सारे मिरर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट याद किए, बराबर, हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आपको याद कराया जाए, बराबर, ना कोई मैंने स्टेप बाय स्टेप हर डेफिनेशन को नहीं लिया, बस मुझे एक ब्रीफ आइडिया देनी थी आपको। समझ में आया? तो इस तरह से एक दो और वीडियोज हम आपको दिखाएंगे, बराबर, और जस्ट आपका 10th आपको याद करवाना है। कोई ये वेल डिजाइन बराबर स्टडी नहीं है, बस आपको एक फन के साथ आपको याद करवाना था कि भाई ऐसा कुछ आपने 10th में पढ़ा था। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड रिफ्लेक्शन। तो आज हम थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बराबर, रिफ्लेक्शन तो हो गया, रिफ्रैक्शन, बराबर, रिफ्रैक्शन के लिए आपको बताया वी नीड टू मीडिया। बराबर, इन दिस केस, इन दिस फिनोमेनन रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बराबर, व्हेन रे एंटर्स इन अनदर मीडियम तो क्या होगा? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर इट इज रिलेटिवली डेंसर मीडियम और इट इज रिलेटिवली रेयर मीडियम। बराबर, तो इससे क्या होगा? The ray will deviate. Okay, ये जो डेविएशन हो रहा है it is called refraction. समझ में आया? It is called refraction. तो when oblique ray is incident on the interface of two media, you will find the ray deviates from its original path. This phenomenon is called refraction. So for refraction we need two media. Consider AB
AB is interface between medium 1 and medium 2. Suppose your medium 1 is rarer medium and medium 2 is denser medium. This is इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होगा ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्योंकि ये रैरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो आपको पता है क्या होगा? The ray will deviate towards normal. You can see the ray deviates towards normal. तो ये आपका क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे। बराबर। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा 2, बराबर। तो यू कैन सी द डेविएशन, अगर डेविएशन हो रहा है तभी ये रिफ्रैक्शन है। क्लियर? नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरह से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए इसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड normal drawn at point of incidence are in same plane. ठीक है। And second point, theta 1 is your angle of incidence and theta 2 is your angle of refraction. So second law is also called Snell's law. So according to Snell's law, sin theta 1 upon sin theta 2 is constant. ठीक है। The ratio of sin value of angle of incidence and sin value of angle of refraction is always constant. It is called Snell's law. बराबर। ये जो रेशियो है it is also called refractive index of medium 2 with respect to medium 1. This constant ratio is also called refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So we get n21 is your sin theta 1 upon sin theta 2. So you can see from it is very clear this from this expression that your refractive index is dimensionless quantity. ठीक है। Now absolute refractive index, what is absolute refractive index? It is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in given medium. Okay. So for medium 1 absolute refractive index n1 is C by V1 and similarly absolute refractive index of medium 2 is C by V2.
ठीक है, तो फ्रॉम दिस कंसेप्ट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जो अल्टीमेटली जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और इसीलिए आपने वैक्यूम की स्पीड को न्यूमरेटर में लिया, यानी जिसके रिस्पेक्ट में हो उसकी स्पीड अगर मैं न्यूमरेटर में लेता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को मैं डिफाइन कर सकता हूं V1 बाय V2, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज V1 बाय V2। Now listen, multiply and divide by C, so we get C by V2 upon C by V1, but C by V2 is absolute refractive index of medium 2 and C by V1 is absolute refractive index of medium 1. So therefore N21 is N2 by N1, ये आपका ये रिजल्ट 2 है, ये आपका रिजल्ट 3। तो मेरे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कितनी फार्मूला बनी, ये साइन थीटा 1 अपन साइन थीटा 2, ये क्या है, वेयर थीटा 1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा 2 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर। देन ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C by V, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 V1 by V2, refractive index of medium 2 with respect to N2 by N1. Now from result 1 and 3 we have N2 by N1 sin theta 1 upon sin theta 2, ठीक है। तो वी गेट N2 sin थीटा 2 N1 sin थीटा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज रे मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 2 से मीडियम 3, मीडियम 3 से मीडियम 4 में जा रहा है, ठीक है। तो हर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, बराबर। तो इसे आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, N इंटू साइन थीटा is constant. अब if the product of two quantities is constant means they are in inverse proportion, ठीक है। तो sin theta is inversely proportional to refractive index। तो मीडियम बराबर, अगर वो रेयर मीडियम है तो जो एंगल फॉर्म करेगा वो ज़्यादा होगा, और अगर वो डेंसर मीडियम है तो जो एंगल फॉर्म होगा वो कम होगा। तो साइन थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी केस में अगर इस लॉजिक को अप्लाई करूं, बराबर, तो क्या होगा, लिसन, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो साइन थीटा डिक्रीज होना चाहिए, बराबर। साइन थीटा डिक्रीज तभी होगा जब थीटा 2 डिक्रीज होगा, यानी थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से स्मॉलर होना चाहिए। थीटा 2 मस्ट बी स्मॉलर देन थीटा 1 एंड फॉर दैट रे हैज टू डेविएट टुवर्ड्स नॉर्मल, बराबर। तो मेरा कंक्लूजन क्या आया, सो आई कैन कंक्लूड दैट व्हेन रे एंटर्स इन डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम इट डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल। सो साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होता है तो साइन की वैल्यू कम होगी, यानी एंगल विल डिक्रीज। तो इस लॉजिक को यहाँ अप्लाई करो। सपोज योर रे एंटर्स इन डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम, सो डेफिनेटली इट एंटर्स इन डेंसर मीडियम, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, सो साइन थीटा शुड डिक्रीज एंड सो थीटा शुड डिक्रीज। थीटा डिक्रीज कब होगा, जब रे डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बराबर। और अगर थीटा को इंक्रीज करना है तो रे विल डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। सो इट इज वेरी क्लियर, दिस इज माय कंक्लूजन। नाउ लिसन केयरफुली, व्हेन रे एंटर्स इन डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम it deviates towards normal
and when ray enters in rarer medium from denser medium it deviates away from the normal. ठीक है, it deviates away from the normal. Similarly listen, एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप कर सकते हो. सपोज जो हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस किया, रिलेटिव, तो सपोज आई एम इंटरेस्टेड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज n4/n1. अब डेफिनेटली ये सपोज इस तरह से है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3, ये मीडियम 4. बराबर रे सपोज यहाँ फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया, इस तरह से मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 2 से मीडियम 3 में गया. बराबर, तो इससे मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. n4/n1 जो है मैंने इसे n3 से डिवाइड किया, n3 से मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली n2 से डिवाइड किया, n2 से मल्टीप्लाई कर दिया. n1 तो ऑलरेडी था ही. सो n4/1 इज, ये क्या होगा, n4/n3 gives you refractive index of medium 4 with respect to medium 3, refractive index of medium 3 with respect to medium 2, refractive index of medium 2 with respect to medium 1. बराबर. सिमिलरली अगर सपोज मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुनो, कि रे 1 यानी मीडियम 1 में जो रे है एंड रे 4 आर पैरेलल. बराबर, पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी. तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि डेफिनेटली θ1 इज इक्वल टू θ4. तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, बराबर, पैरेलल है यानी ये जो नॉर्मल है उसके साथ जो एंगल बनेगा मीडियम 1 में और मीडियम 4 में वो सेम होंगे. सो θ1 इज इक्वल टू θ4. इसका मतलब है sin θ1 इज इक्वल टू sin θ4. बराबर. अब अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं तो वी नो दैट n1 sin θ1 n4 sin θ4. ठीक है, तो θ1 θ4 सेम है. इसका मतलब हुआ n1 इज इक्वल टू n4. तो मीडियम 1 एंड मीडियम 4 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने चाहिए. यानी अगर दो अलग अलग मीडियम हैं और अगर आपको उसमें रे पैरेलल मिल रहे तो डेफिनेटली उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने चाहिए. क्लियर. रिफ्रैक्शन के कारण ही बराबर आपको पता है समटाइम्स द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ आर डिफरेंट. बराबर, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ आर डिफरेंट. समझो, यहाँ ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है. बराबर, ये आपका नॉर्मल है. अब ये रे कंसीडर करो, ये डेंसर से रेरर में जा रहा है तो रिफ्रैक्ट होकर ये नॉर्मल से दूर जाएगा. अब ये सपोज कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है. तो ये जो है ये आपकी एक्चुअल डेप्थ है और ये जो है ये आपकी एपरेंट या वर्चुअल डेप्थ है. तो यू कैन सी इस केस में आपकी वर्चुअल डेप्थ जो है इट इज स्मॉलर देन एक्चुअल डेप्थ. ऐसा कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा और ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में. बराबर, इससे उल्टा अगर ऑब्जेक्ट, सपोज अब यहां पर मैं एक फिश को कंसीडर कर लेता हूं, बराबर, और अब मैं फिश को ऑब्जर्वर कंसीडर करूं, बराबर, तो ये यही रे बराबर
उल्टी डायरेक्शन में आपको कंसिडर करना है यू। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा बराबर, अब ह्यूमन आई इस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है ऐसा लगेगा। तो यू कैन सी ये एक्चुअल डिस्टेंस है और ये वर्चुअल डिस्टेंस है बराबर। तो लिसन, जब ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर है वो अगर डेंसर मीडियम में है तो क्या होगा, जो आपकी वर्चुअल डेप्थ होगी वो एक्चुअल डेप्थ से ज़्यादा, और जो ऑब्जर्वर है वो अगर रेरर मीडियम में है तो आपकी जो वर्चुअल डेप्थ होगी वो एक्चुअल डेप्थ से कम होगी। तो ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो जितना इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिफ्रैक्शन है बराबर। रिफ्रैक्शन बहुत डीप में है, मैंने जस्ट आपको कुछ आइडिया दी, रिफ्रैक्शन का कुछ बेसिक दिया, और ये ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा था बराबर। तो आपको मज़ा भी आया होगा और थोड़ा रिवाइज भी हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस हम केमिस्ट्री के लिए भी बनाएंगे, मैथ्स के लिए भी बनाएंगे। ओके, तो जस्ट एंजॉय इट, थैंक यू।